intelligence organization. دینو وطن سے محبت کرنے والے 5 نوجوانوں کی تہلکہ خیز داستان، جنہوں نے اسلام اور پاکستان کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر دشمنوں کو خوب تگنی کا ناچ نچایا۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے کبھی نہ بھولنے والے اس انتہائی دلچسپ جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ماسٹر خان کی بات پر 5 لڑکے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اگلے ہفتے وہ 5 سامان کندھوں پر ڈالے ماسٹر خان کی رہنمائی میں کیڈٹ کالج مری پہنچ گئے۔ ماسٹر خان 5 لڑکوں کے والدین سے اجازت لے چکے تھے اور انہیں مطمئن کرنے میں بھی کامیاب ہو چکے تھے۔ اب بظاہر وہ 5 کیڈٹ کالج مری میں پڑھنے جا رہے تھے، لیکن کالج سے کچھ دور فاصلے پر ان کے لیے ٹریننگ سینٹر بنایا گیا تھا، جسے بہت زبردست طریقے سے کیموفلاج کیا گیا تھا تاکہ عام لوگوں کو آسانی سے نظر نہ آئے اور دشمن سے بھی حفاظت رہے۔ صبح فجر سے پہلے ان کی مختلف ورزشیں شروع ہو جاتی، فجر کی نماز کے بعد زبردست ناشتہ ہوتا اور پھر تربیت کے مختلف مراحل کا آغاز ہو جاتا۔ وہ 5 شام تک تھک کر چور ہو جاتے۔ ماسٹر خان ہر وقت ان کے ساتھ رہتا اور ان کی جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور روحانی تربیت کا بھی اہتمام کرتا۔ 6 مہینے کی زبردست تربیت کے بعد وہ اگلے مرحلے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ماسٹر خان نے 6 مہینے کے مختصر وقت میں ان کی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا اور وہ 5 بھی ماسٹر خان کی حیرت انگیز صلاحیتیں دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آ گیا جب انہیں 2 مہینے کے اسپیشل کورس کے لیے مری سے آزاد کشمیر روانہ ہونا تھا۔ آزاد کشمیر میں انہیں حساس آلات کے استعمال کے طریقے سکھائے گئے، اسرائیل کی خفیہ نیٹ ورک کے بارے میں معلومات دی گئی اور اس کے علاوہ انہیں میک اپ کے ذریعے چہرہ تبدیل کرنا بھی سکھایا گیا۔ 2 مہینے بعد اب وہ آسانی سے اپنی اور ایک دوسرے کی شکل بدل سکتے تھے۔ 8 مہینے مکمل ہونے کے بعد وہ عید منانے گھروں کی طرف روانہ ہونے لگے تو ماسٹر خان نے انہیں آئندہ کے لیے ہدایات دیتے ہوئے کہا، میں تم لوگوں کو کامیاب ٹریننگ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ تم لوگ ہر مقصد اور مشن میں سرخرو رہو۔ تم لوگ کل اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو رہے ہو، لیکن ضرورت پڑنے پر تم لوگوں کو کسی وقت بھی کال کی جا سکتی ہے، کیونکہ تم لوگوں کو پروگرام کے مطابق 4 مہینے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ عمران، شعیب، ثاقب، زبیر اور وقاص نے یس سر کہتے ہوئے ماسٹر خان کو سلیوٹ مارا اور ہاتھ ملا کر اپنے اپنے کمروں میں جا کر سامان پیک کرنے لگے۔ عمران بھائی، یہاں اتنا مزہ رہا تھا، اب گھر جا کر کیا کریں گے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ کراچی میں ہم بور ہو جائیں گے۔ ثاقب کپڑے بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، ہاں بھائی، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ فوراً ہی کوئی مشن مل جاتا تو مزہ ہی آ جاتا۔ اب تو ماسٹر کی مرضی ہے کہ ہمیں کب کال کرتے ہیں۔ عمران نے ثاقب کی تائید کرتے ہوئے کہا، یار تم لوگ انسان ہو یا جن؟ 8 مہینے سے گھر کی شکل نہیں دیکھی اور تم لوگوں کا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا۔ ٹریننگ میں تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ کہیں دل تو پتھر کے نہیں ہوگے۔ زبیر نے عمران اور ثاقب کی طرف مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو سارے ہنس پڑے۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ ٹکٹ کینسل کر دینے چاہیے، مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ ثاقب نے سنجیدگی سے کہا، میرے خیال میں آج تم نہانا بھول گئے ہو، اس لیے بو۔ وقاص نے اتنا ہی کہا تھا کہ سب ہنس پڑے، مگر اس دفعہ کہکہے کی آواز پہلے سے بھی بلند تھی۔ دوسرے دن شام کو ٹھیک 5 بجے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ گھر والوں کو حیران کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شکلیں تبدیل کر رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جہاز رن وے پر دوڑ رہا تھا اور وہ 5 آگے پیچھے سیٹوں پر بیٹھے ہوئے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک سپیکر گونج اٹھا اور پائلٹ کی آواز مسافروں کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ گھبراہٹ میں کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پرسکون رہیے اور ہدایات کو غور سے سنیے۔ ہمارا جہاز PK-007 جو اسلام آباد سے کراچی جا رہا تھا ہائی جیک کر لیا گیا ہے، آپ سے پائلٹ اعلان کر رہا تھا اور جہاز کے مسافروں میں چیخو پکار کی آوازیں بلند ہو چکی تھی۔ ارے مارے گئے۔ ثاقب نے برابر میں بیٹھے زبیر کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، جو کافی دیر سے اونگ رہا تھا، بھائی کیا ہو گیا؟ کیا جہاز میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے جو کوہنیاں مارے جا رہے ہو؟ زبیر جو ابھی تک صحیح طریقے سے ہوش میں نہیں آیا تھا بڑبڑاتے ہوئے بولا،
जल्दी उठो, हमारा जहाज हाईजैक कर लिया गया है। साकिब ने सरगोशी करते हुए कहा। क्या? जुबैर ने क्या को खींचते हुए घबराहट के आलम में कहा और बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। अब उसकी नींद ऐसे गायब हो चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। सुनो, अभी पायलट ने यही ऐलान किया है, लेकिन ये पता नहीं कि हाईजैकर्स कौन लोग हैं और उनके अज़ाइम क्या हैं। जहाज में शोर बढ़ता जा रहा था और साकिब फिर भी कदरे हल्की आवाज में बोला, लेकिन मुझे तो अभी तक हाईजैकर नजर नहीं आ रहा। कहीं ये मजाक तो नहीं? ओह, कहीं आज अप्रैल की पहली तारीख तो नहीं? हो सकता है जहाज का अमला हमारे साथ अप्रैल फूल मना रहा हो। जुबैर सरगोशी करते हुए बोला। अप्रैल फूल के चाचा, ये अप्रैल का महीना नहीं है। बक बक मत करो और जल्दी से आइंदा की हिकमत अमली तय करो। साकिब ने कमर के गिर्द लिपटी बेल्ट गैर महसूस अंदाज में खोलते हुए कहा तो जुबैर भी जल्दी से बेल्ट खोलने लगा ताकि किसी भी किस्म की कार्रवाई करने में मुश्किल न हो। इसी दौरान अगली नशिस्तों पर बैठे हुए शुएब, वकास और इमरान हरकत में आ चुके थे और उठने के लिए पर तोल ही रहे थे। स्पीकर से दोबारा आवाज उभरी, खबरदार, कोई शख्स अपनी जगह से ना हिले वरना उसे गोली मार दी जाएगी। सारे मुसाफिर हमारे निशाने पर हैं। हमें चंद दहशत गर्दों की तलाश है। शिनाख्त होते ही आप सबको छोड़ दिया जाएगा। इमरान, ये भारत के हाईजैकर्स हैं जो यकीनन हमारी तलाश में हैं। हमारा मेकअप हमारे काम आ रहा है। इससे पहले कि वो हमें शिनाख्त कर लें, हमें कुछ करना ही होगा। वकास ने आहिस्तगी से कहा, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि ये भारत के ही हाईजैकर्स हैं? इमरान ने हैरानगी से पूछा। मैं जो आवाज सुन लूं उसे सालों याद रखता हूँ। ये वही आवाज है जो हमने इंटरव्यू वाले दिन मास्टर खान के कमरे में सुनी थी और जिसकी पिटाई शोएब ने लगाई थी। याद आया? वकास ने अपनी यादाश्त का शानदार मुजाहरा करते हुए याद दिलाया। ओ, इसका मतलब है अभी तक भारत की इंटेलिजेंस हमारे पीछे लगी हुई है। हालांकि मास्टर खान उन्हें ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि उनका टारगेट भारत नहीं है। इमरान ने बात मुकम्मल की तो शुएब ने भी आहिस्तगी से सर हिलाया और पुरसुकून अंदाज में बोला, ये बातें करने का नहीं, कुछ कर गुजरने का वक्त है। यहाँ कैमरे नहीं लगे हुए। यकीनन उनके कुछ आदमी हमारे आसपास ही सीटों पर मौजूद हैं जिसकी धमकी अभी अभी दी गई है। हमें फौरन उन आदमी को ट्रेस करके काबू करना है। ये याद रखना कि उनके हाथों में असलहा बिल्कुल तैयार होगा। जरा सी भी गलती हमें मौत के मुंह में धकेल सकती है। तुम दोनों अलर्ट हो जाओ, मैं पीछे साकिब और जुबैर से राब्ता करता हूँ। ये कहकर शुएब ने अपनी कमीज के बटन को घुमाया तो माइक ऑन हो गया। राब्ता होते ही शुएब ने कहा कि मैं शुएब बोल रहा हूँ, ओवर। दूसरी तरफ साकिब के सीने पर बटन ने हरकत की तो वो समझ गया कि अगली सीटों से राब्ता हो रहा है। उसने भी सबसे ऊपर वाला बटन घुमाया तो शुएब की आवाज सुनाई दी। जवाब में साकिब ने आहिस्तगी से कहा, हाँ सुन रहा हूँ, ओवर। शुएब ने कहा, साकिब, ये भारत के हाईजैकर्स हैं जो हमें तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे चेहरे तब्दील होने की वजह से हमें सही से शिनाख्त नहीं कर पा रहे और सामने भी नहीं आ रहे। उनके आदमी हमारे आसपास ही कहीं मौजूद हैं। उन्हें ट्रेस करो। एक्शन लेने की तुम्हें इजाजत है मगर एहतियात से, ओवर। ओके। और साकिब ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। अभी तक कोई हाईजैकर सामने नहीं आया था, लेकिन शुएब की उकाबी नजरों ने एक एजेंट को ट्रेस कर लिया जो शुएब के बराबर वाली कतार में थोड़ा सा आगे बैठा हुआ था, जिसकी आंखें मुसलसल खामोशी के साथ मुसाफिरों के चेहरों पर फिसल रही थी। मगर वो उन पांचों के मासूम और मेकअप ज़दा चेहरों से धोखा खा रहा था। इन पांचों ने भी बगैर किसी परेशानी का इजहार किए अपने ऊपर मजीद मासूमियत तारी कर रखी थी। दूसरी तरफ साकिब और जुबैर ने भी एक एजेंट को ढूंढ निकाला जो उनकी सीट के बिल्कुल पीछे बैठा हुआ था। निशानदही होते ही साकिब ने शुएब को सिग्नल पास किया और अचानक अपनी सीट से ऐसे उछला जैसे उसकी सीट पर स्प्रिंग लगे हों और पीछे बैठे हुए शख्स पर हमला कर दिया। उसने भी कोट की जेब में मौजूद पिस्टल निकालने की कोशिश की, लेकिन साकिब की हैरत अंगेज फुर्ती ने उसे बेबस कर दिया। फिर भी एक जोरदार हाथ साकिब के सीने पर लगा, लेकिन साकिब का जानदार फौलादी मुक्का उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ चुका था और पिस्टल उसके हाथ से निकलकर सीट के नीचे जा चुकी थी। दूसरी तरफ शुएब ने मौका गनीमत जानकर आगे बैठे हुए एजेंट पर छलांग लगाकर उसकी गर्दन दबोच ली, जो अपने साथी पर हमला होते देखकर पीछे मतवज्जे था और फायर करना चाहता था। शुएब ने उसकी गर्दन पर ऐसा दबाव डाला कि उसकी आंखें बाहर को उबल पड़ी। फिर शुएब के घूंसे थे और उसका मुंह। इतनी देर में इमरान, वकास और जुबैर कॉकपिट की तरफ भागे और जैसे ही वो कॉकपिट के दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक दरवाजा खुला और दो लंबे तरंगे नौजवान शोर शराबा सुनकर जदीद हथियार लिए बाहर आ गए। अभी वो हालात को समझने भी नहीं पाए थे कि सेकंड के 1000वें हिस्से में जुबैर ने भागते भागते फ्लाइंग जंप लगाई और दोनों हाईजैकर्स को काबू करते हुए कॉकपिट के अध खुले दरवाजे से अंदर जा गिरा और पांचवा हाईजैकर जो असलिहा के जोर पर पायलट्स को काबू में किए हुए था, इस अचानक आफत से बौखला गया और इसी बौखलाहट का फायदा उठाते हुए जूनियर पायलट ने उस पर हमला कर दिया। शायद वो भी कुछ लड़ना बढ़ना जानता था, इसलिए फौरन उसके सीने पर चढ़ गया और 2-4 घूंसों में उसे अधमुआ कर दिया। जुबैर जिन दो हाईजैकर्स को लेकर गिरा था
ان کی عمران، وقاص اور زبیر نے مل کر خوب درگت بنائی، اور ثاقب اور شعیب کی مدد کے لیے تو جہاز کے سارے مسافر موجود تھے۔ کوئی لاتیں، کوئی گھوسے اور کوئی جوتوں سے ان کی پٹائی لگا رہا تھا، جبکہ ثاقب اور شعیب باندھنے کے لیے رسی تلاش کر رہے تھے۔ 15 منٹ بعد وہ پانچوں ہائی جیکرز کو باندھنے کے بعد کاکپٹ کے کونے میں پھینک کر ہاتھ جاڑ رہے تھے، اور سارے مسافر انہیں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ان کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ پائلٹ نے بتایا کہ ہائی جیکرز 5 افراد کی تلاش میں تھے جن کی تصویریں ان کے پاس موجود تھیں، اور وہ جہاز کو کراچی لے جا کر ایندھن بھروانے کے بعد نیپال لے جانا چاہتے تھے، جبکہ لہجے سے وہ انڈین لگ رہے تھے۔ دوبارہ کراچی ایئرپورٹ سے رابطہ کر کے اطلاع دی کہ 5 بہادر لڑکوں نے ہائی جیکرز کو قابو کر لیا ہے اور حالات قابو میں ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جہاز کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر اتر چکا تھا۔ عمران نے چاروں کی توجہ کھڑکی سے باہر کے منظر کی طرف دلائی تو انہوں نے دیکھا کہ ایئرپورٹ کو چاروں طرف سے پاکستانی کمانڈوز گھیرے میں لے چکے تھے، اور مختلف اخبارات کے بے شمار فوٹوگرافرز دوڑتے ہوئے جہاز کی تصاویر اتار رہے تھے، اور کئی فائر بریگیڈ کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی دوڑ رہی تھی، جبکہ ان 5 کے چہروں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ جہاز کی سیڑھیوں سے اترتے ہی مسافروں نے ان کے منع کرنے کے باوجود انہیں کندھوں پر اٹھا لیا۔ پاکستانی کمانڈوز فوراً جہاز پر چڑھ گئے اور ہائی جیکرز کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئے۔ ایئرپورٹ کے عملے نے 5 ہیروز کے گلوں میں پھولوں کے ہار ڈالے۔ وہ 5 صحافیوں کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے ویٹنگ روم تک آئے تو وہاں ان کے والدین بھی موجود تھے، جن کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ آج کے ہیروز انہی کے بیٹے ہیں۔ وقاص جب اپنی امی کے قریب سے انجان بن کر گزر رہا تھا تو اچانک اس کی امی وقاص میرے بیٹے کہتے ہوئے اسے لپٹ گئی۔ میک اپ میں ہونے کے باوجود انہوں نے وقاص کی مخصوص مسکراہٹ سے اسے پہچان لیا تھا۔ وقاص کو اپنی امی سے ملتے دیکھ کر باقی چاروں بھی اپنے والدین کو حیران و پریشان کرتے ہوئے ان سے لپٹ گئے۔ دوسرے دن ملک کے تمام اخبارات کی شہ سرخی میں ان 5 کے کارنامے کی تفصیل ان کی تصویروں کے ساتھ درج تھی کہ 5 نوجوان لڑکوں نے بھارت کے ہائی جیکرز کو گرفتار کروا دیا، اور وہ 5 اخبار میں اپنی میک اپ زدہ شکلیں دیکھ کر ہنس رہے تھے، کیونکہ ہیروز کی شکلیں تو اسی دن کیمیکل سے دھل کر ہمیشہ کے لیے گمنام ہو گئی تھی۔ رام رام سر، رام رام، غضب ہو گیا سر۔ اشوک کمار چیختے ہوئے بھارت کی خفیہ تنظیم را کے چیف ایجنٹ راہول کے کمرے میں گھس آیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا جیسے کافی تیز دوڑتے ہوئے آیا ہو۔ ارے رے رے، آرام سے اشوک، آرام سے، دھیرج بابا دھیرج، زیادہ پریشان مت ہو، بولو کیا بات ہے؟ مضبوط اعصاب کے مالک راہول نے بغیر کسی پریشانی کے کہا، سر وہ 5 چھوکرے تو لوہے کے چنے نکلے، انہوں نے ہمارا مشن PK-007 ناکام بنا دیا، اور ہمارے 5 ساتھی پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھوں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اشوک نے ایک ہی سانس میں ساری رپورٹ پیش کر دی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ 5 بچے ہمارے تربیت یافتہ ایجنٹس پر قابو پالیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم اپنی اطلاع درست کرو ورنہ میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ راہول غصے سے چنگاڑتے ہوئے بولا، سر یہ اطلاع تصدیق شدہ ہے، 1 گھنٹے پہلے تک میرا ان سے رابطہ تھا، وہ مجھے ہر لمحہ کی رپورٹ دے رہے تھے۔ ان کے بیان کے مطابق وہ 5 لڑکے ابھی تک جہاز میں شناخت نہیں ہو سکے اور کوشش جاری ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اور عجیب و غریب آوازیں آنے لگی جیسے جہاز میں لڑائی ہو رہی ہو، اور ابھی پاکستان سے ہمارے ایجنٹ موہن نے اطلاع دی ہے کہ وہ 5 گرفتار ہو چکے ہیں، اور اب تو پاکستانی ٹی وی بھی اس کی رپورٹ دے رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہو تم بے وقوف؟ راہول نے جلدی سے لپک کر ٹی وی ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا، جس پر کراچی ایئرپورٹ سے براہ راست ایک شخص تفصیلات بیان کر رہا تھا۔ راہول نے غصے میں ریموٹ پٹخ دیا اور ٹیلی فون اٹھا کر سیکرٹری کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، جلدی سے تمام ذمہ داران کو اطلاع دو کہ ٹھیک 15 منٹ میں میٹنگ ہال میں پہنچ جائیں، ہم آئندہ کی پلاننگ طے کریں گے۔ ہدایات دینے کے بعد وہ اشوک سے کہنے لگا، تم فوراً موہن سے رابطہ قائم کرو اور اس سے کہو کہ وہ کسی طرح گرفتار ساتھیوں سے رابطہ کرے اور انہیں ہدایات دے کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں، بس۔ بہت خوب بھائی، زبردست، تم 5 نے تو مجھے خوش کر دیا، ماسٹر خان نے تعریفی نظروں سے 5 لڑکوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماسٹر خان اطلاع ملتے ہی فوراً کراچی پہنچے تھے اور 5 کو رات کے کھانے پر بلایا تھا۔ سر یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے، ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے، عمران نے عاجزی سے کہا تو ماسٹر خان نے آگے بڑھ کر عمران کو گلے لگا لیا۔ نہیں بھائی، یہ سب تمہارے سچے جذبوں کی وجہ سے ممکن ہوا، اور ویسے بھی اللہ کے شیروں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ تم لوگوں نے اپنے پہلے ہی مارکے میں زبردست بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اب بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بھارت کے نہ صرف سارے ایجنٹ حرکت میں ہیں بلکہ ان کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ گئے ہوں گے۔ ماسٹر خان نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سر اب آئندہ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے خیال میں ہمیں آپس میں رابطہ قائم رکھنا چاہیے اور ہر ہفتے ملاقات بھی ہو جائے تو اچھا رہے گا۔
शोएब ने मशवरा दिया। बहुत अच्छा मशवरा है, मेरा भी यही ख्याल था जिस पर मैं बात करना चाह रहा था। मेरे ख्याल में हर जुमा की शाम हम इसी मकाम पर अपनी मीटिंग करेंगे और हालात के मुताबिक आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। मास्टर खान ने पांचों के चेहरों पर निगाह डालते हुए कहा, बिल्कुल सर, ये ठीक है, लेकिन सर ये भारतीय एजेंट जो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, इनका क्या इलाज किया जाए? जुबैर ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा, इस सिलसिले में मैं रा की हाई कमान से बात कर चुका हूँ कि बिला वजह हमारे साथ टक्कर मत लो। ये जबरदस्ती दुश्मनी मोल लेने वाली बात है। अगर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करें तो आप भी कर सकते हैं, वरना हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने इतनी बड़ी कार्रवाई कर डाली और खुद भी मुसीबत में फंस गए। बहरहाल हम सिर्फ डिफाई पोजीशन इख्तियार करेंगे और खुद कोई कार्रवाई करने से गुरेज करेंगे। मास्टर खान ने दो टोक अंदाज में अपनी पॉलिसी वाजे करते हुए कहा, सर मुझे आपकी बात से इत्तफाक है, लेकिन हमें इस खबीस दुश्मन से छुटकारा पाने की कोई तरकीब जरूर सोचनी चाहिए, वरना हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इसराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त है और अगर बिलफर्ज भारत ने इसराइल से मदद मांग ली तो हम दोनों तरफ से फंस जाएंगे और हमारा मिशन भी अधूरा रह जाएगा। साकिब ने बात मुकम्मल की तो सबके चेहरों पर फिक्रमंदी के साइल लहराने लगे। वाकई हमारी तो इस तरफ नजर ही नहीं गई, तुम तो वाकई बहुत दूर की कोड़ी लाए हो। खैर, इस मसले पर सब मिलकर सोचते हैं और आइंदा अजलास में कोई हिकमत अमली तय करेंगे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। मास्टर खान ने मीटिंग बर्खास्त करते हुए कहा तो सारे लड़के उठ खड़े हुए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा मिशन PK-00 नाकाम हो चुका है और हमारे पांचों साथी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसी सिलसिले में यह हंगामी अजलास बुलाया गया है। राहुल ने रा के जिम्मेदारान को मुखातिब करते हुए कहा, बास, मेरे ख्याल में हमें पहले वो वजूहात मालूम करनी चाहिए जिनकी वजह से हमें नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। एक मेंबर ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, वजूहात को गोली मारो। मैंने पांचों गिरफ्तार एजेंटों के डेथ वारंट जारी कर दिए हैं। कल सुबह तक वो मौत के मुंह में पहुंच चुके होंगे। ऐसे बुज़दिल और निकम्मे लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है। राहुल ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, लेकिन बास, ये तो ज्यादती है, हमें उनको छुड़ाना चाहिए। वो हमारे मुल्क का सरमाया है। हिंदुस्तान ने उनके ऊपर अपना पैसा खर्च किया है और उन्होंने देश की खातिर अपनी जान की बाजी लगाई है। अगर आज वो गिरफ्तार हैं तो क्या हम उन्हें मार डालें? इस तरह तो आइंदा देश की खातिर कोई काम नहीं करेगा। अशोक को गुस्सा आ गया और उसने तकरीर शुरू कर दी, शट अप, बकवास बंद करो। उनकी मौत का फैसला हो चुका है, अब हमें आइंदा की मंसूबाबंदी करनी है। ओके? राहुल ने अटल फैसला सुनाते हुए कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा राहुल साहिब। अशोक ये कहते हुए अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया। अच्छा, तो हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, तो फिर तुम्हें भी जीने का कोई हक नहीं। ये कहते हुए राहुल ने अचानक पिस्टल निकाली और अशोक के सीने का निशाना लेकर लगातार 3-4 फायर किए और थोड़ी देर बाद अशोक का बेजान लाशा हाल के कीमती कालीन को खून से रंगीन कर रहा था। सारे हाल में सन्नाटा तारी हो चुका था। अशोक की लाश बाहर जा चुकी थी। इतने करीबी साथी को इतनी आसानी से मौत के मुंह में जाते देखकर सारे एजेंटों को अपनी मौत भी करीब नजर आ रही थी और वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो चुके थे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमें उन 5 पाकिस्तानी छोकरों और उनके बास मास्टर खान के गिर्द घेरा डालना है। इस सिलसिले में मुझे आप सब लोगों की तजावीज दरकार है। राहुल ने पिस्टल कोट की जेब में रखते हुए इतने इत्मीनान से कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बास, ये मास्टर खान वही है ना जो कई अरसा तक भारत में जासूसी करता रहा है और आजकल पाकिस्तान में रिटायर जिंदगी गुजार रहा है? एक एजेंट ने सवालिया अंदाज में तस्दीक करनी चाहिए। रिटायर्ड नहीं, बल्कि अब हमारे लिए मजीद मुसीबत बनकर सामने आ रहा है। चंद महीने पहले उसने अखबार में इश्तिहार देकर 5 बच्चों को जमा किया जो हमारी इतलात के मुताबिक हैरत अंगेज सलाहियतों के मालिक हैं। उसने उनको जबरदस्त ट्रेनिंग दी और उन्हें हर तरह के हालात का सामना करने की तरबियत दी, जिसकी तफसीली रिपोर्ट हमारे एजेंट के जरिए हमारे पास पहुंच चुकी है। इन 5 लड़कों की तस्वीर खुफिया तौर पर ली गई हैं और रिहायशी पते भी हासिल कर लिए गए हैं। बहरहाल मुझे वो लड़के जिंदा हालत में चाहिए। मैं भी तो देखूं कि आखिर वो है क्या चीज। राहुल ने गुस्से से आंखें बाहर निकालते हुए कहा, जिसमें सफाकियत वाज़ेह तौर पर महसूस की जा सकती थी। मेरे ख्याल में इस सिलसिले में हमें भरपूर प्लानिंग तैयार करके पाकिस्तान भेजनी होगी ताकि हमें दोबारा नाकामी का मुंह न देखना पड़े। एक और एजेंट ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, नहीं, इस दफा मैं खुद पूरे ऑपरेशन की निगरानी करूंगा और हम पूरा ग्रुप भारत से तैयार करेंगे और तुम में से चंद अफराद मेरे साथ होंगे। इस बार मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहूंगा। तुम में से कौन इस ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहेगा? राहुल ने अचानक तमाम मेंबरान से सवाल कर डाला।
जिस के जवाब में सारे एजेंट एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कोई भी खुशी से मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार नहीं था। अरे तुम लोग तो अभी से डर गए, इस मर्तबा ऐसा कुछ नहीं होगा। ये ऑपरेशन इंतहाई खुफिया होगा, जिसमें मुकेश, जितेंद्र और राजेश मेरे साथ पाकिस्तान जाएंगे और बाकी अफराद यहीं से कंट्रोल संभालेंगे। बाकी तफसीलात हम अगली मीटिंग में तय करेंगे। इस ऐलान के साथ ही मुकेश, जितेंद्र और राजेश के चेहरों पर बेबसी के आसार वाज़े तौर पर नमूदार हो चुके थे। शाम का अखबार पढ़ते हुए साकिब की नजरें एक खबर पर जम गई। पाकिस्तान भारत क्रिकेट सीरीज के लिए बड़ी तादाद में भारतीय शायकीन कराची पहुंच चुके हैं। तफसीलात में लिखा था कि इस सीरीज को देखने के नाम पर शरपसंदों की आमद खारिज इम्कान नहीं। साकिब की छठी हिस्स बेदार हो चुकी थी। खतरे की घंटियां उसके दिमाग में मंदिर के घंटे की तरह बज रही थी। अभी वो उठने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक उसके मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ जुबैर की आवाज सुनाई दी, साकिब, इमरान को गुलशन इकबाल से अगवा कर दिया गया है। क्या इतनी जल्दी? साकिब ने हैरत से कहा, इतनी जल्दी से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या तुम्हें पहले से भी कुछ मालूम है? जुबैर ने फौरन ही साकिब के अल्फाज पकड़ लिए। हाँ, आज एक खबर पड़ी तो अचानक छठी हिस्स बेदार हो गई कि जरूर कुछ होने वाला है, मगर ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। बहरहाल अब क्या करना है? साकिब ने पूछा। अभी मेरे पास वकास का फोन आया था, हमें फौरन मरकज पहुंचना है। जुबैर ने मुख्तसर इतला दी और साकिब ने ओके कहकर फोन रख दिया। मीटिंग हॉल में मास्टर खान बड़ी बेचैनी से टहल रहे थे। साकिब और वकास पहुंच चुके थे, अलबत्ता जुबैर अभी तक गायब था। अल्लाह खैर करे, ये जुबैर पता नहीं कहाँ रह गया। हम अपनी मीटिंग शुरू करते हैं, क्योंकि अब हमारे पास इंतजार का वक्त नहीं। मास्टर खान अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, मेरे ख्याल में उसकी बाइक पंक्चर हो गई है, कहीं रास्ते में फंसा हुआ होगा। साकिब ने मुस्कुराते हुए कहा, साकिब, तुम्हें इसकी इत्तला है या ऐसे ही डींगे मार रहे हो? मास्टर खान ने साकिब को गुस्से से घूरते हुए कहा तो साकिब ने फौरन माजरत करते हुए कहा, सर माफी चाहता हूँ, वैसे ही जहन में एक बात आ गई थी। इसी दौरान मास्टर खान के मोबाइल की आवाज गूंज उठी और मेज पर रखा हुआ मोबाइल थरथरा उठा। मास्टर खान ने मोबाइल कान से लगाया तो दूसरी तरफ से जुबैर था। सर दरअसल मेरी... जुबैर ने भी इतना ही कहा था कि मास्टर खान बेसाख्ता बोले, हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है। ये बताओ तुम इस वक्त कहाँ पर हो? हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। मास्टर खान ना चाहते हुए भी साकिब की तरफ देखकर मुस्कुरा उठे। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई है? जुबैर की आवाज में बला की हैरत पोशीदा थी। तफसीलात आने के बाद अभी ये बताओ कि कब तक पहुंच रहे हो? मास्टर खान ने जुबैर की हैरानी को नजरअंदाज करते हुए कहा, सर बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, आप मीटिंग शुरू कीजिए। जुबैर ने बात खत्म की और मास्टर खान ने ओके कहकर मोबाइल ऑफ कर दिया। भाई तुम इंसान हो या जिन? ये तो वाकई पंक्चर हो गई। मुझे तो तुम पर शक होता जा रहा है, जरूर तुम्हारे पास कोई गैबी ताकत है। मास्टर खान भी काफी हद तक सटपटा गए थे। सर ये तो सिर्फ अंदाजा लगाना है, अब अगर मेरे अक्सर अंदाजे दुरुस्त हो जाते हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप मना करेंगे तो आइंदा मुंह बंद रखूंगा। साकिब ने आखिरी जुमला ऐसे कहा जैसे धमकी दे रहा हो। नहीं भाई नहीं, तुम्हारे मुंह खोलने ही में हमारा फायदा है, वैसे भी तुम मुंह बंद रख ही नहीं सकते। क्या ख्याल है, सही कह रहा हूँ ना? मास्टर खान ने साकिब के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा तो साकिब ने मुस्कुराते हुए जवाब में कंधे उचका दिए। सर जुबैर से तो बात हो गई, मगर ये शोएब कहाँ गायब है? वकास ने तशवीश का इजहार किया। शोएब गायब नहीं, फील्ड में है, बस जुबैर आने ही वाला है, फिर हम सारी बातें एक साथ ही कर लेंगे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जुबैर ने अंदर आते हुए कहा। हाँ भाई, अब अंदर आ ही चुके हो तो पूछ क्यों रहे हो? साकिब ने हंसते हुए कहा, इमरान भाई की ठीक ठाक फैंटी लग रही होगी और आप यहाँ बैठे हंस रहे हैं। हमारे ख्याल में हमें जल्द ही संजीदगी से कोई लाहे अमल तय करके फौरन अमल करना चाहिए। वकास उम्र में सबसे छोटा था, इसीलिए सबसे ज्यादा फिक्र भी उसे ही लगी हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल वकास बिल्कुल सही कह रहा है। अब तुम लोग सारी तफसीलात सुनो, फिर आगे बात होगी। आज सुबह जब 7:05 पर शोएब का फोन आया तो मैं समझ गया कि कोई न कोई मसला है, क्योंकि उसकी सांस फूल रही थी और वो काफी घबराया हुआ था। उसने बताया कि आज मैं फजर की नमाज पढ़ने इमरान की तरफ चला गया कि चलो सुबह सुबह इमरान से मुलाकात भी हो जाएगी। मस्जिद से निकलने में मुझे थोड़ी देर हो गई। नमाज पढ़कर मस्जिद से बाहर निकला तो इमरान 30-40 कदम आगे निकल चुका था। मैंने बाइक स्टार्ट की ही थी कि अचानक एक सफेद कार इमरान के पास आकर रुकी और उसमें से 3 आदमी फुर्ती से निकले और इमरान को मुजाहमत का मौका दिए बगैर गन पॉइंट पर उसे कार में डाला और चंद सेकंड में ये जा वो जा। उसने बताया कि अभी तक वो उसी कार के पीछे लगा हुआ है और रास्ते से बात कर रहा है और पीछा करने में काफी दुश्वारी पेश आ रही है, क्योंकि सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम है और काफी फासले से पीछा करना पड़ रहा है। जैसे ही कोई कामयाबी मिली वो फौरन राब्ता करेगा।
सर क्या उसने बताया कि वो किस हुलिया के लोग थे? साकिब ने पूछा। नहीं, उसने सिर्फ इतना ही बताया है कि वो लोग हाथों में स्याह दस्ताने और चेहरे पर स्याह मास्क लगाए हुए थे और वैसे भी वो रास्ते में था, इसीलिए मैंने उसे ज्यादा नहीं कुरीदा। मौका पाते ही वो खुद फोन करेगा। सर इसका मतलब है कि जब तक शोएब हमसे राब्ता नहीं करे हम कोई कदम नहीं उठा सकते। वकास ने नतीजा निकाला। बिल्कुल, लेकिन हमें अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है ताकि जैसे ही वो सिग्नल दे हम रवाना हो सके। मास्टर खान ने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। सर आज के अखबार की खबर है कि भारत से क्रिकेट के हजारों शायकीन कराची पहुंच चुके हैं। हम इस खबर को नजरअंदाज नहीं कर सकते। साकिब ने अखबार मास्टर खान के सामने रखते हुए कहा, जो वो साथ ही ले आया था। जी हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि ये राह की कारस्तानी है और वो आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि परसों जिस तरह उन्होंने जेल के अंदर अपने 5 साथियों को कत्ल किया है वो हमें भी इतनी आराम से नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन घबराहट की जरूरत नहीं, इंशाल्लाह इस दफा हम उनका जबरदस्त इलाज करेंगे। जबरदस्त कहते हुए मास्टर खान ने अपने दांतों और हाथ को सख्ती से बींचा तो वकास, जुबैर और साकिब का भी ढेरों खून बढ़ गया। देखो, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं, हमारे असलहे बे आवाज है, ना खुद आवाज निकालते हैं और ना मरने वाले को आवाज निकालने की मोहलत देते हैं। ये पहली हिदायत थी जो इमरान को कार में जबरदस्ती बिठाने के बाद मिली थी, और उसे ये हिदायत ना भी मिलती तो वो कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। वो तो सलाम फेरते ही मस्जिद से दुआ मांगे बगैर निकल आया था, क्योंकि रात देर तक जागने के बाद उसे सख्त नींद आ रही थी और वो जल्दी से घर पहुंचकर आराम करना चाह रहा था। मगर इस अचानक आफत से तो सारी नींद ऐसे गायब हो गई थी जैसे गधे के सर से सींग। आधे घंटे तक सड़कों पर घुमाने के बाद उसे एक कमरे में लाकर धक्का दे दिया और उसकी आंखों से पट्टी खोलकर हाथों को आजाद कर दिया गया। मौका पाते ही इमरान ने गैर महसूस अंदाज में अपनी कमीज का बटन घुमा दिया, जिससे मास्टर खान और दूसरे साथियों से राब्ता कायम हो गया। अब वो आसानी से कमरे में होने वाली बात सुन सकते थे। ये खुफिया बटन पाकिस्तान ही के साइंसदानों का इजाद करदा था, जो सिर्फ पाकिस्तानी एजेंसियों के इस्तेमाल में था और मुकम्मल तलाशी के बावजूद भी किसी की नजर इस पर नहीं जा सकती थी। और इन 5 को हिदायत थी कि जैसे ही कपड़े बदलें फौरन ये बटन दूसरी कमीज में मुंतकिल कर लें ताकि 24 घंटे किसी वक्त भी खुफिया तौर पर राब्ता कायम हो सके। मास्टर खान, वकास, जुबैर और साकिब को अभी गुफ्तगू करते हुए मुश्किल से आधा घंटा ही गुजरा था कि चारों को अपने सीने पर थरथराहट महसूस हुई, जिसका मतलब था कि शोएब या इमरान में से कोई राब्ता कायम करना चाह रहा था, मगर कान से खुफिया तौर पर मुंसलिक स्पीकर खुरखुर खुरखुर के सिवा कोई आवाज नहीं दे रहा था। सिर्फ हल्की हल्की सांस चलने की आवाज आ रही थी। थोड़ी देर बाद एक कड़कदार आवाज गूंजी। हाँ तो लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? देखें जनाब, मुझे आपने अगवा किया है तो फिर यकीनन आप मेरा नाम भी जानते होंगे। ये तो इमरान की आवाज है। उसने सिर्फ स्पीकर ऑन किया है ताकि हम सारी कार्रवाई सुन सके। मास्टर खान ने आवाज पहचानते हुए कहा। चटाख चटाख की निहायत जोरदार आवाज गूंजी और कोई निहायत गुस्से से चंगाड़ा। खबीस, राहुल के सामने जुबान चलाता है। थप्पड़ की आवाज इतनी जोरदार थी कि इमरान के साथ साथ इन चारों के कान भी एक लम्हे के लिए साई साई करने लगे। खुदाया, इतना जोरदार थप्पड़! वकास को जर्जरी सी आ गई। अल्लाह रहम करे। शोएब ने भी अभी तक कोई इत्तला नहीं की। पता नहीं कहाँ फंस गया है, वरना हम भी कोई कार्रवाई कर डाल दे। हम सवालात करेंगे और तुम्हें ठीक ठीक जवाब देना होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। चारों के कान में एक मर्तबा फिर राहुल की आवाज गूंजी। तुम्हारा नाम इमरान है? सवालिया अंदाज में पूछा गया। हाँ, इमरान की आवाज आई। तुम गोरिल्ला फाइटर्स के रुकन हो? मैं किसी गोरा पापड़ को नहीं जानता, वैसे मुझे पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं, इमरान ने संजीदगी से कहा तो राहुल गुस्से से भड़क उठा और अब लातों, मुक्कों और गुस्सों के साथ गालियों की बौछार शुरू हो गई। सर बहुत हो गया, हमें कुछ करना चाहिए वरना ये लोग इमरान को जान से मार डालेंगे। इमरान के कराने की आवाज सुनकर जुबैर गुस्से से खड़ा हो गया। इमरान को अगवा करके जैसे ही कार रवाना हुई, शोएब ने कमाले होशियारी का मुजाहरा करते हुए अपनी बाइक कार के पीछे डाल दी और काफी फासले से मुस्तकिल पीछा जारी रखा। शोएब ने महसूस किया कि कार में भी इमरान ने कोई मुजाहमत नहीं की। शायद उन्होंने उसे बेहोश कर दिया हो या इमरान ने बेबस होकर खुद ही हाथ पांव ढीले छोड़ दिए हों। घूमते घुमाते अब वो डिफेंस की तरफ निकल आए थे। शोएब ने फौरन ही मास्टर को इत्तला कर दी थी। डिफेंस की खामोश गलियों में पीछा करना अब और भी दुश्वार हो गया था, लेकिन शोएब को अंदाजा था कि अब तक वो इसे लाइल्म है। अब कार एक बंगले के सामने आकर रुक गई और बंगले का दरवाजा एक झटके से खुल गया, जैसे उन्हीं के इंतजार में हो, और कार के अंदर जाते ही खुदकार तरीके से दरवाजा बंद हो गया। 3-4 मिनट इंतजार करने के बाद शोएब ने बंगले के पास चक्कर काटा। R356 बंगले का नंबर था, जो फौरन ही उसके दिमाग पर नक्श हो गया। करीब ही खाली प्लाट में बाइक खड़ी करने के बाद वो बंगले का चारों तरफ से घूम फिर कर जायजा ले रहा था कि अचानक पीछे से किसी ने शोएब की गर्दन पकड़ ली और शोएब को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन किसी हाथ में नहीं बल्कि लोहे के शिकंजे में जकड़ दी गई हो।